اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ واسطہ راولپنڈی نے ریئر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں برف باری نے رنگ جما دیا۔ اسکردو، شانگلہ، چترال، سوات، مالم جبہ، نتھیا گلی اور مری میں برف باری۔ ایوبیہ، ڈونگا گلی اور ٹھنڈیانی نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ کئی علاقوں میں سڑکیں بند۔ کراچی میں گزشتہ شام سے چلنے والی گردآلود تیز ہواؤں کا سلسلہ آج بھی جاری۔ ہواؤں کی رفتار 40 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ ہواؤں کی سمت شمال مغرب سے ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ عمران خان کل ٹیلی فون پر عوامی شکایات اور آراء سنیں گے۔ عوام کے ساتھ یہ نشست دوپہر 3 بجے ہوگی۔ وزیر اعظم مختلف شعبوں میں حکومت کے ترقیاتی اقدامات سے بھی آگاہ کریں گے۔ رانا شمیم اور سولیسٹر نے نواز شریف کے دفتر میں یہ بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ شریف فیملی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ یہ بیان حلفی نواز شریف کے دفتر میں ان کی ہدایات کے مطابق تیار ہوا۔ تمام واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے رچایا گیا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ پیپلز پارٹی بلدیات کا کالا قانون لے کر آئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تمام ادارے وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے کچرا اٹھایا نہیں جاتا، نالے بھی وفاقی حکومت کو صاف کرنا پڑتے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی۔ حکومت کا قبضہ مافیا کے خلاف ایک اور ایکشن۔ سٹیزن پورٹل نے خیرپور ٹامے والی کے رہائشی اسکول ٹیچر حافظ فیاض احمد کی داد رسی کر دی۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے زرعی زمین ٹیچر کو واپس دلوا دی۔ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 11.10% ریکارڈ۔ 6,540 نئے کیسز رپورٹ۔ مزید 12 افراد جاں بحق۔ آئندہ 2 ہفتے میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بھرپور ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ زیادہ مثبت شرح والے ادارے 1 ہفتے کے لیے بند ہوں گے۔ عالمی سطح پر ایک دن میں 32 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 8,000 سے زائد اموات ہوئیں۔ امریکہ میں 5 لاکھ، فرانس میں 4 لاکھ اور بھارت میں 3 لاکھ سے زیادہ کورونا کے نئے مریض سامنے آئے۔ سعودی عرب کی کورونا کی نئی لہر میں عمرہ پر پابندیوں کے حوالے سے افواہوں کی سختی سے تردید۔ کشمیریوں پر مظالم اور ماورائے عدالت قتل میں بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ ملوث ہیں۔ برطانوی پولیس کو دی گئی درخواست کے ساتھ 2000 شواہد منسلک۔ کشمیر لیگل فورم نے ڈوزیئر کی تفصیلات جاری کر دیں۔ عالمی برادری انسانیت سوز کارروائیوں کا نوٹس لے۔ سیکولر ریاست ہونے کے دعوے دار بھارت میں مسلمان بنیادی حقوق سے محروم۔ کرناٹک کے سرکاری کالج میں حجاب پہننے والی مسلمان طالبات کے داخلے پر پابندی کو 20 روز گزر گئے۔ انسانی حقوق رہنماؤں کا امتیازی سلوک ختم کرنے کا مطالبہ۔ ویسٹ انڈیز میں ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ آج 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ آج پاپوا نیو گنی کے خلاف کھیلے گا۔ افغانستان کی ٹیم زمبابوے، بنگلہ دیش کی ٹیم UAE، جبکہ بھارتی ٹیم یوگانڈا کے خلاف میدان میں اترے گی۔ ایونٹ کے میچز PTV سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ سال کا پہلا گرینڈ سلیم آسٹریلین اوپن ٹینس۔ اسپین کے رافیل نڈال کی پری کوارٹر فائنلز میں رسائی۔ اٹلی کے موٹے برٹنی بھی چوتھے مرحلے میں پہنچ گئے۔ خواتین میں عالمی نمبر 1 آسٹریلیا کی ایشلے بارٹی لاسٹ 16 میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ دفاعی چیمپئن جاپان کی ناومی اوساکا کو اپ سیٹ شکست۔
اور سعودی عرب کا محلات کو لگژری ہوٹلز میں بدلنے کا منصوبہ. جدہ کے الحمرا پیلس، ریاض کے طویق اور ریڈ پیلس کو ہوٹلز میں تبدیل کیا جائے گا. مہمانوں کے لیے 224 پرتعیش کمرے، سویٹس اور ولاز دستیاب ہوں گے. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں محمد مزمل حسین. اور کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی. اور موسم کی خبر یہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے پیر تک جڑواں شہروں میں تیز بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. واسطہ راولپنڈی نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں. نکاسی آب کے لیے ہیوی مشینری کے عملے سمیت نشیبی علاقوں میں ڈیوٹیز بھی لگا دی گئی ہیں. اور ناظرین، کراچی میں گزشتہ شام سے چلنے والی گرد آلود تیز ہواؤں کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق ان ہواؤں کی رفتار 40 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، جبکہ اس دوران ہوا کے جھکڑ 50 کلومیٹر کی رفتار تک بھی جا سکتے ہیں. ہواؤں کی سمت مغرب سے تبدیل ہو کر شمال مغرب سے ہونے کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو رہا ہے. سردی کی یہ نئی لہر 27 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے. اسی دوران درجہ حرارت 9 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں صبح سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے پیر تک بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. موسم کی مزید صورتحال کے بارے میں جان لیتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے احسن نور سے. جی، لاہور میں بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب پنجاب کے دیگر اضلاع قصور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کا یہ سلسلہ پیر تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. دوسری جانب بارش کے سلسلے کے ساتھ ہی شہر بھر اور پنجاب میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث شہریوں کو شدید سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. موسم کی اس صورتحال کے پیش نظر واسا کی ٹیمیں بھی سڑکوں پر موجود ہیں، جو نکاسی آب کو یقینی بنا رہی ہیں. دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں اور کسی بھی قسم کی موسمیاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. جی احسن نور ہمیں لاہور سے موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب ذرا کراچی کی بات کریں تو کراچی گرد کے باعث جزوی طور پر دھند کی لپیٹ میں ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. کراچی میں موسم کی صورتحال کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن فی الوقت آپ کو کوئٹہ سے اپڈیٹ کرتے ہیں. اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع پشین، مستونگ، لورالائی، ڈیرہ بگٹی، دکی، قلعہ سیف اللہ، کوہلو اور دیگر ملحقہ علاقوں میں وقفے بارش، جبکہ زیارت، کان، محترزئی، قانوزئی، چتیر، کوزک، ٹاپ میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے. پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کوئٹہ کو پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور افغانستان کو ملانے والی شاہراہوں پر برف ہٹانے کے تمام کام مکمل کر لیے ہیں. تمام شاہراہوں پر ٹریفک بحال کر دیا ہے. بارشوں اور برفباری سے ان علاقوں میں طویل عرصے سے جاری خشک سالی میں کمی واقع ہوگی اور زراعت کے شعبے پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. برستی بوندوں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. جڑواں شہروں کے موسم کا مزید احوال جانتے ہیں مریم ملک سے. جی بالکل، گھنگور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں اور آسمان سے برستی بوندیں. اسلام آباد ایک بار پھر ہو گیا ہے بھیگا. ملک کے بیشتر حصوں میں بارش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. شہر اقتدار کے موسم کی بات کریں تو بارش کا نہ تھمنے والا سلسلہ کل رات سے شروع ہوا تھا، جو اب بھی وقفے سے جاری ہے. اور آج ویکنڈ کا سٹارٹ بھی ہو گیا اور شہری اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے تفریحگاہوں کا رخ بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے مزے کے پکوان بھی کھا رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، کے پی میں بارش کا سلسلہ جو ہے اگلے 2 دن تک جاری رہے گا اور آج رات سے جو ہے اس بارش کا سلسلہ جو ہے وہ زور پکڑے گا. اسی کے ساتھ ساتھ کوئٹہ اور بلوچستان میں جو ہے وہ سیزن کی اچھی برف باری جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتائی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مری گلیات میں بھی برف باری ہوگی. جی
मरियम मलिक हमें शहर इक़्तिदार से अपडेट कर रही थीं और कराची का रुख करें तो कराची गर्द के बाद जुज़वी तौर पर धुंध की लपेट में है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची के मौसम के बारे में मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास। जी, कराची में इस वक्त गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं का ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान इन हवाओं की रफ्तार जो है वो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये चल सकती हैं और कभी कभी इनमें हवा के झक्कड़ जो हैं वो तकरीबन 52 किलोमीटर तक की रफ्तार को छू सकते हैं। कल रात से ये हवाओं का सिलसिला जो है वो शुमाल मगरिब की जानिब से हुआ है, जिसके बाद कराची में बल्कि पूरे सिंध में जो है जो हवाएँ हैं वो सर्द रहेंगी और जिसकी वजह से सर्दी की एक नए लहर का आगाज़ हो रहा है और ये जो सर्दी की लहर है ये 27 जनवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, यानी कि 10 या 10 से बिलो भी ये रह सकता है और इस दौरान 7 डिग्री मिनिमम तक ये जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जिसने पूरे जो सदर्न एरिया है मुल्क का जिसमें बलूचिस्तान और सिंध आते हैं इसको अपनी लपेट में लिया हुआ है। गर्द आलूद हवाओं का इस सिलसिला आज शाम तक ये जारी रहेगा और यही माहिरीन का भी कहना है कि इस गर्द आलूद हवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कवर रखें ताकि जो एलर्जी के इश्यूज़ हैं ये सामने ना आएँ। बहुत शुक्रिया ज़मीर तफसीलन आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब मलका कौसार मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी और गिरदनवा में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक 1000 से ज़ायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। सियाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मरी में पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे राना इफ्तिखार मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राना इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा, मरी में अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, कल रात से 11 बजे से बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक शदीद बर्फ़बारी जारी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का काफ़ी रश है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं जो बर्फ़बारी से एंजॉय कर रहे हैं। जब हम इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे तो जो गाड़ियाँ आ रही हैं इस्लामाबाद से मरी की तरफ, इनको खुसूसी गाइडलाइन दी गई है। वहाँ पे एंट्री पॉइंट पर जो स्याह आ रहे हैं उनका ID कार्ड और लाइसेंस चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जिन स्याहों के पास गाड़ी के लिए चेन है उसी को ही अंदर आने की इजाज़त है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो स्याह हैं वो भी अब मुतमिन हैं। जहाँ पे कुछ स्याह भी हैं उनसे बात करते हैं कि वो कैसा फील करें, जो सहूलतें हुकूमत ने अरेंजमेंट किए इससे वो कितने मुतमिन हैं। जी बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कराची से आए हैं हम 4 दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। मरी की सिक्योरिटी हमें बहुत अच्छी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। आगे माल रोड तक जाना था लेकिन वो रेस्क्यू टीम की वजह से पुलिस ने हमें थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया, लेकिन हम यहीं बर्फ़ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच, मरी के लोगों का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़ी अच्छी स्नो फॉलिंग हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम कोटराजा किशन ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं जी। हाँ बेटा, आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? मैं ज़िला कसूर से आया हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पहली बार आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं आई। इधर सारी सहूलतें दस्तियाब हैं और फौज भी अपना काम दिखा रही है सारे। जी, आपने जैसे सुना है स्याहों से कि स्याह खुश हैं कि जो इस दफ़ा अरेंजमेंट किए हैं, जो बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, पुलिस वाले 1122 और दीगर इदारे भी अलर्ट हैं। जी सही। राना इफ्तिखार, ये बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि सयाहों की बड़ी तादाद मरी में दाखिल हो रही है और चेक पॉइंट्स पर जो है वो सयाहों को गाइडलाइंस भी दी जा रही हैं, कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से भी अहकाम जारी किए गए। इससे पहले जो सूरत हाल रही हम सबके सामने है, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इस बार क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस दफ़ा हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो ज़िली इंतज़ामिया उसने खुसूसी तौर पर इंतजाम किए। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो जहाँ का रात से मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ इंतजाम का जायज़ा लिया है। जहाँ पे 200 जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। जो स्याह आ रहे हैं उनको गाइड कर रहे हैं। बाकायदा किसी को भी जो सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो सड़क पर बर्फ़बारी हो रही है साथ साथ को हटाया जा रहा है और नमक भी डाला जा रहा है। जो जहाँ पे स्याह हैं वो मुतमिन हैं, जो इंतजाम किए हैं उससे वो मुतमिन हैं। जी राना इफ्तिखार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग मजीद मरी की जानिब जाना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है?
जी बिल्कुल, उनके लिए गाइडलाइन ये जारी की गई, वो अपना आईडी कार्ड साथ रखें और अपना लाइसेंस रखें। इसके साथ जो गाड़ी लेके आ रहे हैं उसके साथ उसका चयन होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उनको जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे रोक लिया जाता है। जो पुलिस है वहाँ पे जो दोनों दाखिली रास्ते हैं, टोल प्लाजे हैं, मोटरवे वाला और दूसरा, उन पे उनको रोक कर चेक किया जाता है और उनके पास आईडी कार्ड और लाइसेंस हो, इसके अलावा गाड़ी के लिए चेन हो, तो उसी सूरत में उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा उनको अलाउ नहीं किया जाता। उनके जो बाकी इंतजाम, उस हवाले से उनको गाइड किया जाता है कि अगर कोई भी मुश्किल हो तो उनके लिए अलग से नंबर भी पुलिस ने दिए हैं। जो पुलिस एहलकार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, 1122 वो भी एहलकार मौजूद हैं। दीगर जी बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार, तफसीलन आगाह करने के लिए। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बारिशों और बर्फबारी के बायस किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए PDM ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बलूचिस्तान के मौसम के बारे में मजीद बता रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। जी, बलूचिस्तान के मुतादद अजला इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। स्पेशली बलूचिस्तान के शुमाली अजला किला सैफुल्लाह, खानोज़ई, कान मेहतरज़ई, ज़ियारत, कोजक टॉप, किला अब्दुल्ला, चमन, तोबा काकड़ी, पशिन और मुतादद अजला जो हैं वो वहाँ पर बर्फ़बारी के हवाले से जो है वो ख़बरें मौसूल हुई हैं। पहाड़ों पर बर्फ़बारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी थोड़ा मुतासिर हुआ है, लेकिन आमद व रफ्त को बहाल रखने के लिए कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवां है। रात गए तकरीबन 11:30 बजे कोजक टॉप पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक तातुल का शिकार रही। इसके बाद NHA के ताउन से PDM ने भरपूर इक़दामात उठाए और वहाँ पर वो रूट क्लियर किया गया। मौजूदा कुछ देर पहले की बात है कि जब खानोज़ई और ज़िले इंतज़ामिया ज़ियारत से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी किए गए इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। बताया कि तमाम हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर सयाहों को ज़ियारत आने से इसलिए रोका गया है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जाए। सरफराज शेख हमें अपडेट कर रहे थे और अब आपको बताएंगे कि मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर के ओढ़ी सयाह इन्हें देखने खींचे चले आ रहे हैं। मालम जब्बा से देखते हैं ये रिपोर्ट। मालम जब्बा में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। हद्दे निगाह तक हर चीज बर्फ से ढक गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालम जब्बा में अब तक 9 इंच बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ को देखने सयाह भी बड़ी तादाद में सवात और मालम जब्बा पहुंच रहे हैं। कोई चाय पकौड़ों से लुत्फानंदोज हो रहा है तो कोई भुनी छल्ली का मजा ले रहा है। मालम जब्बा में खड़ा हूँ, बहुत लाइव जबरदस्त स्नोफॉलिंग हो रही है, लाइव एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। कुदरत का नज़ारा देख के बहुत अच्छा लगा है, दिल खुश हुआ है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत कदरदान है हर तरह के। इंशाल्लाह आप भी आ जाए और एंजॉय करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि पेशावर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश चराट में 26, जबकि पेशावर में 22 मिलीमीटर, मर्दान में 18, दीर और तेमरगरा में 8, बन्नू 10, पाड़ा चनार 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मालम जब्बा में अब तक 9 इंच, जबकि कालाम और पारा चनार में 1-1 इंच बर्फ पड़ी है। सूबे के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने की पेशन गोई की गई है। कल सूबे के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम जाने का इम्कान है, ताहम सूबे के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहने की पेशन गोई की गई है। और कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताएंगे कि आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल बराह रास्त टेलीफोन पर आवाम की शिकायत और आरा सुनेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत के तरक्याती इक़दामात से भी आवाम को आगाह करेंगे। मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म के आवाम के साथ ये नशिस्त 23 जनवरी दोपहर 3 बजे होगी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि शरीफ फैमिली ने राना शमीम केस में इस इंकशाफ की तरदीद नहीं की कि ये हल्फिया बयान नवाज शरीफ के दफ्तर में उनकी हिदायत के मुताबिक तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि राना शमीम और सोलिसिटर ने नवाज शरीफ के दफ्तर में ये बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। तमाम वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया।
اور اب شامل کریں گے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا بیان، جنہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بلدیات کا کالا قانون لے کر آئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں تمام ادارے وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ بلدیاتی نمائندگان کے پاس جو تھوڑے بہت اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے۔ لاڑکانہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بلدیات میں اختیارات لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہوئے جو سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئے۔ علی زیدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اختیارات آگے منتقل نہیں کیے۔ جماعت اسلامی نے بھی کالے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سے صرف اپنے مفاد کی چیزوں کو لیا جاتا ہے۔ علی زیدی نے کہا کہ سندھ اسمبلی کی کمیٹیوں میں اپوزیشن کا ایک بھی چیئرمین نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے کچرا اٹھایا نہیں جاتا، نالے صاف نہیں ہوتے، سرکل ریلوے ان سے نہیں چلتی، پانی یہ نہیں دے سکتے۔ سندھ میں سارے کام وفاق کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور نے کہا کہ سندھ کو ملنے والا 12,000 ارب روپیہ کہاں گیا؟ کیا لاڑکانہ میں اسپتال اور سکول بنائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے اپنے منشی کو وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پچھلے 14 سال میں کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنایا۔ اور خبر یہ ہے کہ حکومت کا قبضہ مافیا کے خلاف ایک اور ایکشن دیکھنے میں آیا۔ سٹیزن پورٹل نے خیرپور ٹامے والی کے رہائشی اسکول ٹیچر حافظ فیاض احمد کی داد رسی کرتے ہوئے قبضہ مافیا سے زرعی زمین ٹیچر کو واپس دلوا دی۔ سائل نے اپنے وراثتی زمین پر قبضے کے خلاف سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کی تھی۔ بھاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامے والی میں سیاسی اثر و رسوخ کے حامل قبضہ مافیا نے ٹیچر کی 8 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ بندہ ہے، اس نے روک دیا کہ تم نے یہاں پر حل نہیں چلانے کیونکہ اب یہ زمین ہماری ہے اور آپ اس طرف آئندہ نہ آئیں۔ وہ کلہاڑیاں اور وہ مطلب ڈنڈے وغیرہ لے کے آ گئے اور ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ تھے۔ تو ہم وہاں سے چلے آئے، ہم نے جا کے پولیس میں رابطہ کیا، ہم نے محکمہ ریونیو سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ سٹیزن کمپلینٹ پورٹل ہے، اپلیکیشن دیں تو امید ہے کہ بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ سٹیزن پورٹل میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائی، فوری طور پر اس کا ریئیکشن ہمیں نظر آیا، وہاں سے میسیجز آنا شروع ہو جائے، وہاں سے رابطہ ہوا ہمیں، تو ہمیں بلایا گیا، اس کو بھی بلایا گیا، زمینوں پہ چلے گئے، وہاں جا کے ریکارڈ چیک کیا تو وہ زمین واقعی ہماری تھی۔ تو چونکہ پولیس بھی ساتھ تھی اور ریونیو کا عملہ بھی ساتھ تھا، انہوں نے سارے بیان ملی اور ریکارڈ ان کو دکھایا، تو وہ اس بات کو اپنی غلطی اس نے تسلیم کی اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف اس نے قبضہ چھوڑا بلکہ یہ کہ تحریری معافی نامہ بھی لکھ کے دیا کہ میں آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اور ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، پاکستان میں مکمل امن بحال کریں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع میں سماجی اور اقتصادی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر سیکیورٹی فورسز کا کردار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع میں ترقی علاقے میں پائیدار استحکام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی کی تازہ صورتحال، ضم شدہ اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں اور افغان سرحد پر لگائی جانے والی باڑ کے عمل میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ کورونا کی تازہ ترین صورتحال سے پہلے آپ کو SOPs یاد دلاتے چلیں کہ آپ نے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا ہے، ماسک پہننا ہے اور سماجی فاصلہ بھی اختیار کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 6,540 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 11.1% ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 2 ہفتوں میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بھرپور ٹیسٹنگ کی جائے گی اور زیادہ مثبت شرح والے ادارے 1 ہفتے کے لیے بند ہوں گے۔ اور یہی نہیں، آئندہ 2 ہفتے میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بھرپور ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ زیادہ مثبت شرح والے ادارے 1 ہفتے کے لیے بند ہوں گے۔ 12 سال سے زائد عمر کے طلباء کی مکمل ویکسینیشن ہوگی۔ اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث مختلف سیکٹرز کی 24 گلیاں سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے سمیع اللہ اپنی رپورٹ میں۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,343 टेस्ट किए गए, जिनमें से 7,678 मस्बत रिपोर्ट हुए। मौलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 29,065 हो गई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 57,935 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 961 की हालत तशवीशनाक है। NCOC ने ज्यादा शरह वाले इलाकों के तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया है। NCOC के मुताबिक अगले 2 हफ्तों के दौरान तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे। तालीमी इदारों में 12 साल से जायद उम्र तलबा की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना के 1,886 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जब से कोरोना से सिर्फ 1 हलाकत हुई है। तमाम शहरों के लिए कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 9.1% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं और 12 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए महकमा सेहत की टीमें सरगर्म अमल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 75 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सुबह भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 264 हो गई है। तरफ चले जाएं तो आपने देखा वो बहुत ज़्यादा इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वहाँ उनका कैप्चर है मार्केट के ऊपर, वो भी आप एक्सप्लोर करें ताकि जो इस वक्त फ़ायदे पहुँच रहे हैं पाकिस्तान में बिजनेसमैन को, आम सार्फिन को, वो उस तक भी ट्रांसफ़र हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने तमाम तर मनसूबों के हवाले से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में तरक्याती मनसूबों के लिए कोशां है। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से कोरोना के 1,456 नए केसेस सामने आए हैं। पंजाब भर में कोरोना के बायस लाहौर से 2, जबकि रावलपिंडी और मुल्तान से 1 हलाकत रिपोर्ट हुई और सूबे भर से तमाम शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 6.9% रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मज़ीद 462 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,83,865 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना से मज़ीद 1 शख्स जाँ बहक होने के बाद मजमूई तादाद 5,969 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 12,045 नए टेस्ट किए गए। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 2,251 हो गई है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 40 केसेस सामने आ गए। सूबे में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 304 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता रोज़ ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 24 केसेस पेशावर में सामने आए। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए सबसे पहले वायरस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे तो आलमी सतह पर ओमिक्रॉन की शिद्दत बढ़ रही है। एक दिन में 32 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 8,000 के करीब लोग जान की बाजी हार गए। अमेरिका में 24 घंटे में 5,48,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। आज से वायरस के फैलाव रोकने के लिए अमेरिका में सिर्फ उन अफराद का दाखिला होगा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। भारत में मजीद 3.5 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। उधर रूस में एक दिन में 50,000 नए मरीज सामने आने के बाद हुकाम ने नई पाबंदियों पर गौर करना शुरू कर दिया है। हांगकांग के इलाके सुफियाशन में नए केस सामने आने के बाद 5 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज करते हुए 3,000 से जायद की आबादी के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। दौरान परवाज मास्क ना पहनने पर पायलट ने तैयारे को वापस मोड़ लिया। अमेरिका से बरतानिया उड़ान भरने वाले तैयारे को उस वक्त वापस मोड़ लिया गया जब एक खातून मुसाफिर ने कवायद पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। मियामी से लंदन जाने वाली अमरीकी एयरलाइन की परवाज में अमले के 14 अफराद समेत 129 मुसाफिर सवार थे। 1.5 घंटे परवाज के बाद तैयारा उसी मुकाम पर वापस आ गया जहां से रवाना हुआ था। मियामी पुलिस को एयरलाइन ने मदद के लिए तलब किया, जिन्होंने मुसाफिर खातून को जहाज से उतार लिया। और नाज़रीन, दूसरी जानिब सऊदी अरब ने कोरोना की नई लहर में उम्रा पाबंदी पर हवाले से अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वजारत हज और उम्रा ने उम्रा अदायगी पर पाबंदी के हवाले से फैलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद उम्रे की अदायगी पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी।
वजारत ने तस्दीक की है कि अभी तक उम्रे की अदायगी और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन या नमाजियों की आमद पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर नहीं आया और ना ही ऐसा कोई इरादा है। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं कि मलका कोस्टार मरी में मामूलात ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के सिलसिले में DC रावलपिंडी ताहिर फारूक की सदारत में हंगामी इजलास हुआ। इजलास में मौसम की शिद्दत के बायस हालात से निपटने के लिए तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया। इजलास को बताया गया कि सयाहों की आमद और कारोबारी सरगर्मियों की फौरी बहाली के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे ताकि सानिया मरी के बाद सयाहती सरगर्मियों को रमादमा किया जा सके। DC रावलपिंडी ने कहा कि किसी भी महकमे के अफसर या अमले ने गफलत बरती तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरी का कारोबार सियाहत से वाबस्ता है। हमारी अवलीन तरजीह ये होगी कि सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि कश्मीरियों पर मजालिम और मावरा अदालत कत्ल में बराह रास्त भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला अमित शाह मुलव्वस हैं। 2000 शवाहिद पर मबनी एक दरख्वास्त बरतानवी पुलिस को दी गई है। कश्मीर लीगल फोरम ने डोजियर की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया है। इसी हवाले से देखते हैं वकार हैदर की ये रिपोर्ट। भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल व गरतगरी में मुलव्वस हैं। लंदन की एक लॉ फर्म स्टॉक वाइट ने 2000 शवाहिद पर मबनी दरख्वास्त बरतानवी पुलिस को दे दी और मुतालबा किया कि भारतीय कातलों को गिरफ्तार किया जाए। भारतीय मजालिम पर कश्मीर लीगल फोरम के सरबराह नासिर कादिर एडवोकेट ने बरतानवी पुलिस को दिए गए डोजियर की तफसीलात मीडिया को जारी कर दी। ये डोजियर अगेन इट इज़ अ यूनिक जो इंडियन एट्रोसिटी क्राइम्स को एक्सपोज करेगी। इस डोजियर में 111 फर्जी एनकाउंटर के लिस्ट दी है एंड विद ऑल द डिटेल्स, कौन सा यूनिट है इंडियन आर्मी का, CRPF का और जम्मू कश्मीर पुलिस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, मकबूजा कश्मीर में समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों और आम शहरियों पर तशद्दुद, अगवा और कत्ल के पीछे भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला अमित शाह का हाथ है। डोजियर में इंसानी हकूक़ के मुमताज़ कारकुन खुरम परवेज और सहाफ़ी सजाद गुल के हवाले से भी बात की गई है। Whatever India has been committing in this occupied territory, these are not just human rights violations. They are war crimes because they are being committed in a state of war in an occupied territory against people who have been occupied for so long. हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा वादी में खवातीन की जिनसी हिरासगी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो रहा है। आलमी बरादरी भारतीय फौज की इंसानियत सोज कार्रवाइयों का नोटिस ले। बहुत से और केसेस हैं डिवाइडेड कश्मीरी फैमिलीज के जो बिछड़ गए हैं, जिनके अहले खाना को मार दिया गया है, गायब कर दिया गया है, उनका अता पता ही नहीं है। और स्पेशली जो क्रीम है कश्मीर की, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। भारतीय हुकाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए लंदन पुलिस को ये दरखास्त उसके आलमी दायरा इख्तियार के तहत दी गई है, जो दुनिया में कहीं भी इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने का इख्तियार देता है। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू के इलाके में वर्किंग बाउंड्री के साथ इजाफी नफरी तैनात कर दी है। BSF के एक सीनियर अफसर के मुताबिक वर्किंग बाउंड्री के साथ फौजियों को मुतहरिक कर दिया गया है और धुंध के मौसम और भारतीय यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र निगरानी के आलात के साथ इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरहद पर तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज़ कर दिया गया है। पुलिस ने सरहद को तरफ जाने वाली सड़कों को पर कई चौकियां भी कायम कर दी हैं और चेकिंग बढ़ा दी गई है। और भारत ने 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, 2 वेबसाइट्स और 5 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि ये चैनल्स और अकाउंट्स पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे और इनका मकसद भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करना और जाली मवाद की तशहीर था। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स में से ट्विटर के 2 अकाउंट्स, इंस्टाग्राम के 2 अकाउंट्स और फेसबुक का 1 अकाउंट शामिल है। जिन यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है उनके मजमूई सारफीन 35 लाख से जायद हैं, जबकि इनकी वीडियोस को 55 करोड़ से भी जायद बार देखा गया है। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। ठट्ठा मिकेटी बंदर के करीब समंदर में कश्ती उलटने से मुतअद्दिद माहीगीर डूब गए हैं। कश्ती में 16 अफराद सवार थे। 4 अफराद तैरकर साहिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। बाकी की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाई जारी है। बाकी की तफसीलात जानते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं?
جی بالکل، یہ ہجامڑو کریک ہے جہاں پہ یہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ہے. 16 افراد اس میں سوار تھے. 4 جو ہے وہ تیر کے ساحل پہ پہنچے ہیں، جنہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 16 افراد تھے جس میں 12 ابھی لاپتہ ہیں. پاکستان نیوی اور جو ضلع انتظامیہ ٹھٹھہ ہے ان کی ٹیمیں ریسکیو میں مصروف ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ الرٹ جاری کیا گیا تھا ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ موسم کی خرابی کے باعث اور سمندر میں طغیانی کے باعث جو ہے وہ کھلے سمندر میں وینچر نہ کریں، ماہی گیر نہ جائیں. لیکن یہ الرٹ یا تو ان کے پہلے سے موجود تھے وہاں پہ سمندر میں، یا پھر انہوں نے اس الرٹ کو جو ہے وہ دیکھا نہیں تھا یا پراپر اس کو ہیڈ نہیں کیا. یہ جب صبح جو ہے 2 کشتیاں پہلے اطلاع آئی تھی کہ 2 کشتیاں جو ہیں وہ اندر سمندر میں ہیں، تاہم ایک کشتی جو ہے وہ باحفاظت واپس آ گئی تھی اور دوسری کشتی جو ہے وہ تیز ہواؤں کے باعث الٹ گئی تھی جس میں 16 افراد سوار تھے. اس وقت پاکستان نیوی اور ضلع انتظامیہ ٹھٹھہ کی جو ٹیمیں ہیں وہ دونوں وہاں پہ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں، اور جیسے جیسے اپڈیٹ ہوتی جائے گی ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے جائیں گے. یہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تمام جو ماہی گیر ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بدین کے علاقے کولاچی سے ہے. تو یہ سارے وہاں پہ ماہی گیری کے لیے گئے تھے اور یہ جو ہے وہ جو حادثہ ان کو پیش آیا ہے، اور اس وقت ریسکیو جو کام ہے کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں. جی، ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے. 4 افراد تیر کر ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، باقی کی تلاش جاری ہے. ضمیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. انہیں ملک کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا. اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ میں فرائض انجام دے رہی تھیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے 15 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے. تقریباً 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں. شہباز خان کاکڑ کی رپورٹ دیکھیے. بلوچستان میں 27 جنوری 2021 سے اب تک پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، جو ایک کامیابی ہے. پولیو کے خاتمے کے لیے 5 روزہ مہم کا آغاز کر دیا. جن اضلاع میں پولیو مہم شروع کی جائے گی ان میں کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، جوب، مستونگ، لسبیلا اور دیگر اضلاع شامل ہے. سوسائٹی کے جتنے بچے ہیں آپ ان کو کور نہیں کریں گے، یہ خطرہ موجود رہتا ہے. لیکن فارچونیٹلی اب 1 سال ہو گیا ہے. ہمارے ہاں میرے خیال لاسٹ ایئر 27 جنوری کو آخری کیس آیا تھا، اس کے بعد کوئی کیس نہیں آیا ہے. اس میں ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہمارے جو پرائرٹی ڈسٹرکٹس ان میں کمپین ہو رہی ہے، جس میں ہمارا ٹارگٹ 15 لاکھ ہے اور 6600 کے قریب ہماری ٹیمیں ہوں گی. کمشنر کوئٹہ ڈویژن سہیل الرحمان بلوچ نے پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا. 24 جنوری بروز پیر سے پولیو مہم کے دوران 6600 ٹیمیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے پر مامور ہوں گی. والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ہر مہم کے دوران پولیو ویکسین پلائیں اور اپنے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں، کیونکہ پولیو کی ہار میں ہماری جیت ہے. شہباز خان کاکڑ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ. اور ناظرین، گوگل نے اپنا ڈوڈل پاکستان کی سماجی کارکن پروین رحمان کے نام کر دیا. پروین رحمان کی 65ویں سالگرہ کے موقع پر گوگل نے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا ڈوڈل ان کے نام کیا. پروین رحمان 22 جنوری 1957 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں. انہوں نے کراچی میں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے 1982 میں آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی اور نیدرلینڈ میں ہاؤسنگ سٹڈیز انسٹیٹیوٹ سے 1986 میں رہائش، عمارت اور شہری منصوبہ بندی میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ حاصل کیا. وہ کراچی یونیورسٹی، NED، انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر اور داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں پڑھاتی تھیں. سماجی شعبے میں گراں قدر خدمات پر پروین رحمان کو متعدد اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا. 13 مارچ 2013 کو کراچی میں پروین رحمان کو کراچی میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. نوجوان خواتین مصنفین کا افسانوی مجموعہ گونجتی سرگوشیاں منظر عام پر آ گیا ہے. افسانوی مجموعے کی تقریب رونمائی اکادمی ادبیات پاکستان میں ہوئی. تقریب کی صدارت ممتاز شاعرہ کشور نائید نے کی. 7 افسانہ نگاروں کے چنندہ کام پر مشتمل کتاب پر گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ گونجتی سرگوشیوں کے افسانوں کا خمیر معاشرے کی تلخ اور تاریخ پہلوؤں سے اٹھا ہے. اس افسانوی مجموعے کے تمام لکھاری اپنے منفرد اسلوب اور فکر رکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ گونجتی سرگوشیوں کی گونج تا دیر سنائی دے گی. اور ناظرین، سیکولر ملک کے دعوے دار بھارت کے انتہا پسندانہ رویے کی بات کریں تو بھارت کی ریاست کرناٹک کے سرکاری کالج میں حجاب کرنے والی طالبات 20 دن سے کلاس روم کے باہر بیٹھی ہیں، تاہم انہیں کلاس روم میں داخلے کی اجازت نہیں.
इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि इस तरह का कोई कानून नहीं, ताहम मुस्लिम लड़कियों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। ज़िला उडुपी में ज़ेर तालीम इन तालिबात का कहना है कि इन्हें ज़बरदस्ती हिजाब पहनने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इन तालिबात ने पहली बार 31 दिसंबर को एहतजाज किया था और तब से ये सिलसिला जारी है। तमाम लड़कियां दरसगाह में आती हैं, ताहम उन्हें क्लासरूम में दाखिल होने नहीं दिया जाता। बेशतर तालिबात का ताल्लुक 11वीं और 12वीं जमात से है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने जिनेवा में यूक्रेन के मसले पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की। दोनों फरीकों के दरमियान गुफ्तगू में कोई फौरी पेशरफ्त नहीं हो सकी, ताहम इस मसले पर सफारती चैनल्स खुले रखने पर इत्तफाक किया गया है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमले करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि अमरीका के ज़ेर कमान नेटो फ़ौजी इत्तेहादी मशरक़ यूरोप और यूक्रेन में अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दे और यूक्रेन को नेटो की रुकनीत ना दी जाए। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका मुत्तहिद होकर फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन मसले के सफारती हल के लिए तैयार है। शुमाली बहरा हिंद में रूस, चीन और ईरान की बहरी अफवाज ने मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें की हैं। बहरी सलामती और अमन के उन्वान से होने वाली ये मशक़ें 17,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में हो रही हैं। ईरान का बहरी बेड़ा और रूस और चीन के जंगी और लॉजिस्टिक जहाज़ इन मशक़ों में शरीक हैं। कज़ाकों का खात्मा, रात के वक्त फ़िज़ाई अहदाफ और दीगर शोबों में तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर भी तवज्जो दी जा रही है। यमन में हौज़ी बागियों के ज़ेर तसल्लुत सूबा सादा में सऊदी क़यादत में इत्तेहादियों के फ़िज़ाई हमले में 60 से ज़्यादा अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। हमले में आर्जी हिरासती मरकज़ को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने फ़िज़ाई हमलों की मज़म्मत की है। दोनों जानिब सऊदी इत्तेहाद ने एक बयान में इस हमले की तरदीद की है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्क अल मालकी ने सऊदी अरब के सरकारी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि बागियों के ज़ेर कब्ज़ा हिरासती मरकज़ पर हमले की खबरें बेबुनियाद हैं। और नाज़रीन, दीगर खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताएंगे कि फलों की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान को दुनिया में एक नुमायां मुकाम हासिल है। सारा साल दस्तयाब रहने वाला फल अमरूद जायके में फीटा और हैरत अंगेज फ़वाइद से मालामाल है। अमरूद की फसल कम लागत और मुनाफा बख्श है। वज़ीराबाद से बिलाल अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। अमरूद एक सस्ता, लजीज और फरतबश फल है जिसे विटामिन सी के हसूल का बड़ा जरिया कहा जाता है। इस वक्त मुल्क भर में बिलखसूस पंजाब में अमरूदों की बहार आई हुई है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी से शौक से खाते हैं। ये खाने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। हम तो ऐसे अमरूदों पे चढ़ चढ़ के खाते थे अमरूद कि जैसे तोता मैना जो है ना वो बैठ के खाते हैं। तिब्बी माहिरीन अमरूद को हाजिम बताते हैं, जबकि इसके दीगर फायदे भी हैं। इसके पत्ते और बीज भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं। ये फल विटामिन सी के अलावा पोटाशियम और फाइबर से भरपूर होता है। ज़ियाबितस के अमराज में इसको बहुत मुफीद पाया गया है। अमराज मैदा में भी बहुत मुफीद है। अगर रोज़ाना की रूटीन में एक अमरूद शामिल कर लिया जाए तो बहुत से अमराज से बचा जा सकता है। अमरूद की मुख्तलिफ किस्में हैं जिन पर साल में 2 बार फल आता है, जबकि जदीद हाइब्रिड इकसाम सारा साल फल देती हैं। ये गोल्डन गोला वे ते एदी पैदावार गर्मी दी भी ते सर्दी भी अच्छी अल्लाह ताला देंदा वे ते जेड़ा ना असी बाजार भी काश करने मंडी भी देने आ। मुनासिब कीमत में हर शख्स की पहुंच में रहने वाले फल अमरूद की फसल मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों का शिकार हो जाती है। ताहम ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करके और मुनासिब हिकमत अमली अपना कर ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। बिलाल अहमद खान लोधी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, वजीराबाद। और सर्दियों की आमद के साथ ही बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों से वाइल्ड पिस्ताचोस पक कर मार्केट में आ जाते हैं। सर्दियों की मशहूर सौगात शिनिये के नाम से भी मशहूर है। तफसीलात जानेंगे जुलेखा खान की रिपोर्ट में। ड्राई फ्रूट्स का नाम आते ही सर्दियों का तस्वुर जहन में जगह बनाने लगता है। अगर ड्राई फ्रूट्स में बात शने की जाए तो सर्दियों में शने अक्सरियत की पसंद होते हैं। ये ग़िज़ायत से भरपूर मेवा बलूचिस्तान के पहाड़ों में पाया जाता है।
जी बहुत अच्छा चीज़ है। ड्राई फ्रूट में सबसे महंगी चीज़ ये है। सर्दी में जो है ना ये गर्म है, बलूचिस्तान के पहाड़ों में मिलेगा। जब बर्फबारी भी जब इसको खाएंगे आपको सर्दी महसूस नहीं होगी। शने ना सिर्फ सर्दी का जोर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसे खाने का अंदाज भी बड़ा दिलचस्प होता है। शने को यहाँ का रिवायती मेवा समझा जाता है। शने ना सिर्फ खुश जायका बल्कि सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। शने को बलूचिस्तान की स्पेशलिटी समझा जाता है जो और कहीं नहीं मिलती। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, क्वेटा। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे सऊदी अरब ने महलात को लग्जरी होटल्स में बदलने का मंसूबा बनाया है। ये फैसला रियासती मलकियत में काम करने वाले पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने किया है। इस इक़दाम का मकसद मुल्क में होटलिंग के शोबे में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी है। इस मकसद के लिए एक नई फर्म भी कायम की गई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के बयान के मुताबिक जद्दा के अलमरा पैलेस, रियाज के तुवैक और रेड पैलेस के होटल्स में तब्दील किया जाएगा, जहां मेहमानों के लिए 224 पुरतश कमरे, सूट्स और विलास दस्तयाब होंगे। सऊदी अरब के शहर तबूक के करीब पहाड़ों में वाक़ई एक आबशार मुंजमद हो गई है। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि इस इलाके में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है और आबशार ने बर्फ के मुजस्मे की शक्ल इख्तियार कर ली है। अफसोसनाक खबर है कि मगरबी घाना में एक हादसे में 17 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि हादसा उस वक्त रोनमा हुआ जब सोने की कान के लिए बारूदी मवाद लेकर जाने वाला ट्रक एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे के बाद ट्रक में धमाका हुआ और करीबी इलाके भी इसके असरात की लपेट में आ गए। बताया गया है कि बारूद से भरे ट्रक में होने वाले धमाके के बायस 500 से ज़ायद करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा है।